Assalamu alaikum students. Today in accountancy, new lecture. We are going to see again one more question here of admission of a partner. Now in this sum, we are going to see, first we have to see the question here. Let's see the question first. Question says that following is the balance sheet of A and B who share the profit in the ratio of 3:2. Balance sheet is given to you people. Now you can see the balance sheet here. Creditors are there, capital is there, asset side cash in hand, debtors, stock, furniture and plant and machinery. Now adjustment on the date they admitted C. A and B already there and they admitted C. C admitted in the partnership on the following terms. Now C is to bring 15,000 as a capital. 15,000 as a capital. Let me speak the journal entry of this 15,000. Cash account debit to C's capital account 15,000. I repeat again, cash account debit to C's capital account 15,000 rupees first. And 5,000 as a premium for goodwill for 167. So he is bringing 5,000 for goodwill also. Now when someone brings the goodwill, you people know now that it should be distributed between old partners in sacrifice ratio. Now if you see the whole sum here, adjustment and everything, new ratio is not given, it means old ratio will become the sacrifice ratio. So 5,000 will be distributed here, this 5,000 will be distributed between A and B in the ratio. So 5,000 if you distribute, the entry will be like this. Cash account debit to A's account and to B's account. Now 5,000 will be distributed in the ratio of 3:2. So 3:2 is very easy. 3,000 and 2,000. This is journal entry I am talking about. Question we will see definitely and then after solution also. Now, second adjustment, the value of the stock is reduced by 10%. So stock is given here 15,000, 10% minus means 1,500. So it will be 13,500. So reduced by 10% while plant and machinery is appreciated by 10%. Now appreciate means to increase. Increase by 10% plant and machinery. Plant and machinery 30,000. 30,000, 10% is 3,000. So if you increase 3,000, it will be 33,000 rupees. So plant and machinery 33,000 in balance sheet, new balance sheet, as well as 3,000 rupees profit of the business that will be recorded in revaluation account credit side. Next, furniture is revalued 9,000. Here furniture is given 10,000 and here it is 9,000. So 1,000 less. 1,000 less means in the balance sheet furniture will be 9,000 as well as 1,000 loss will be recorded on revaluation account debit side. Because 10,000 to 9,000 that means 1,000 loss is there. Then after a provision for the doubtful debts is to be created on debtors 5%. Now debtors given here, debtors 12,000. 12,000 5% is 600. Now what we will do in the balance sheet, we can do one thing. Debtors we will write down asset side 12,000 inner column minus BDR 5% 600. So 12,000 minus 600 that becomes 11,400 outer column and 600 will be recorded second effect on revaluation account debit side. I will show you all the solution later on. This is orally I am discussing right now. Next, investment worth rupees 1,000 not mentioned in the balance sheet is to be taken into account. यानी 1,000 के इन्वेस्टमेंट जो हम भूल गए थे, हमें पता ही नहीं था, वो हम अभी ले रहे हैं. Excuse me. Yeah, come to the point. इन्वेस्टमेंट 1,000 के जो है, जो हमें पता ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, वो अभी हमें मिले हैं या हमें पता चला. So it's a great for business, it's an advantage for business, it's a profit for business. So investment we will write down balance sheet asset side as well as it is a profit. So revaluation account credit side. Creditors of 100 not likely to claim his money and is to be written off.
यानी 100 रुपए के क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, सो इट्स अगेन बेनिफिट फॉर बिजनेस। सो क्रेडिटर्स जो भी है यहाँ पे 20,000 माइनस 100 रुपीज, सो इट्स 19,900 and 100 rupees benefit of the business revaluation account credit side. Now see the solution please. Always we see the solution. Revaluation आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टॉक पहले लिखा है 1500, 1500 कैसे आया फिर से समझा दो, एडजस्टमेंट देखिए आप यहाँ सेकंड एडजस्टमेंट, स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक यहाँ पे है 15,000 का, 15,000 के 10% 1500 माइनस हो गए, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा है 1500, ये रहा। अब यहाँ इन्होंने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाते तो क्या करते, 15,000 में से 1500 माइनस हो गए तो 13,500 असेट साइड आउट ऑफ कॉर्ड लिखना पड़ता। आफ्टर दैट दे हैव रिटर्न फर्नीचर 1000, आपको पता है फर्नीचर एडजस्टमेंट में दिया है 9,000 और पहले फर्नीचर था 10,000, तो 1,000 कम हो गया, लॉस। So furniture 1,000 is a loss for business. So revaluation account debit side 1,000. And अगर बैलेंस शीट बनाते तो असेट साइड पे फर्नीचर बाहर आता, आउटर कॉलम 9,000। थर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600। यहाँ पे आप देखिए डेटर्स आपको दिए हैं 12,000 और 12,000 के PDR कितने परसेंटेज बोला है, 5%, तो 600 होगा। So outer column it will be 11,400 के कहां पे लिखा है, बैलेंस शीट में असेट साइड, ये लिखना होगा। और ये जो 600 है उसकी सेकंड इफेक्ट हम देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन में आप देखेंगे डेबिट साइड लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 600, और ये दूसरी इफेक्ट कहां देते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड। वी आर नॉट मेकिंग बैलेंस शीट राइट नाउ एज दे हैव नॉट did not mention to make the balance sheet, so we are not preparing right now. मगर अगर बैलेंस शीट बनाते तो ये इफेक्ट देते। नेक्स्ट प्लीज सी हियर, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 200 एडजस्टमेंट में दिया है, वहां पे चेक कीजिए, ये रहा 200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका मतलब ये है कि 200 रुपए 200 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बाकी है। So it's a responsibility for us. Our responsibility increase, our liability increase. So what we are going to do, 200 rupees will be written on revaluation account debit side. So they have written here revaluation account debit side outstanding electricity 200. ये बैलेंस शीट अभी बनाई नहीं है, न्यू बैलेंस शीट अगर बनाते तो क्या होता, लायबिलिटी साइड लिखते, अलग से लिखना होता, सेपरेट इफेक्ट देनी है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 लायबिलिटी साइड अगर बैलेंस शीट बनाते तो। देन दिस इज प्रॉफिट, वो तो बाद में लेंगे, टोटल क्लोज होता है तब। क्रेडिट साइड प्लांट एंड मशीनरी 3,000, उन्होंने क्लियरली बोला है प्लांट एंड मशीनरी को 10% इंक्रीज करना है। ऊपर दिया है प्लांट एंड मशीनरी, आप देखिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है 30,000 और यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला गया है, एडजस्टमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं हियर प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, so 30,000 10% is 3,000, so 3,000 plant and machinery is our asset. So if we increase our asset, it is good for business, it is profit for business. So revaluation account credit side it is there. You can see here plant and machinery 3,000 credit side. Now second effect अगर देते तो बैलेंस शीट में asset side plant and machinery 30,000 plus 3,000 33,000 will be there. Okay. Next. यहां पे देखिए आप इन्वेस्टमेंट 1,000 एडजस्टमेंट में बोला था, एडजस्टमेंट आगे जो था वो यहां पे है। Here, investment worth ₹1,000 not mentioned in the balance sheet is to be taken into account. यानी इन्वेस्टमेंट एक ऐसे थे जो हमें पता ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट इज अवर एसेट, हमें पता नहीं था कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अब पता चला है। तो इन्वेस्टमेंट इज अवर बेनिफिट, इज अवर एसेट, सो वी विल राइट डाउन रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट
where to give the second effect, balance sheet asset side. So यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेल्युएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यू कैन सी इन्वेस्टमेंट 1000, बैलेंस शीट बनाते तो लिखते असेट साइड इन्वेस्टमेंट 1000. Then you can see here sundry creditors 100. एडजस्टमेंट में वहां बोला था कि क्रेडिटर्स 100 रुपए लेने वाले नहीं है, तो 100 इज आवर प्रॉफिट, आवर बेनिफिट. तो यहाँ पे लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 100 रुपीज. सेकेंड इफेक्ट अगर बैलेंस शीट बनाते तो क्रेडिटर्स जो 20,000 टोटल दिए है ऊपर, उसमें से 100 माइनस होते. सो लायबिलिटी साइड कितने लिखते 19,800 sorry 900 because 100 rupees will be minus. Okay, now कैपिटल अकाउंट पूरा आपको बना के दिया है. तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, पहले दो पार्टनर की कैपिटल दी है जो ऑलरेडी सब में दी है 30,000 एंड 20,000 बैलेंस बी. उसके बाद ये देखिए आप गुडविल, जो 5,000 रुपए वो गुडविल लाता है. सॉरी फर्स्ट हम देख लेते हैं. तीसरा जो पार्टनर है वो 15,000 कैपिटल लाता है, तो वो भी दिया है यहाँ पे बैंक में, बैंक अकाउंट. क्रेडिट साइड इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर. तो बैंक अकाउंट वो जो बैंक अगर आप बनाया होता तो बैंक में डेबिट साइड आता लेजर पोस्टिंग, और यहाँ क्रेडिट साइड लिखा है. बैंक अकाउंट 15,000 सीज कैपिटल, और सी जो 5,000 रुपए गुडविल ला रहा है उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो. यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड विल बिकम सैक्रिफाइस. तो 5,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 3,000 2,000, इट इज गुडविल. सेकंड इफेक्ट देते तो कहाँ देते, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में डेबिट साइड. ओके, देन ये हो गया गुडविल का. यहाँ पे अब देखिए ये पूरा क्लोज हुआ है, ये प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का. प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 800 प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. उसकी सेकंड इफेक्ट यहाँ पे ली है 480 एंड 320. उसके बाद यहाँ इन्होंने क्लोज किया है अकाउंट, तीनों का टोटल वो यहाँ ट्रांसफर किया है, सेम ट्रांसफर. उसके बाद यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं था, नो नथिंग वाज देयर, नो ट्रांजैक्शन वाज देयर. सो व्हाट दे हैव डन, बैलेंस सीडी, द बैलेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू. अब यही बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट्स. सो इट्स अ वेरी सिंपल वेरी इजी सम. आप एडमिशन की एक सम करो या 50 सम करो या 100 करो, अगर आप परफेक्टली 5 सम करते हैं इट इज इनफ फॉर यू. और मैं एक बार और बताऊं, एडमिशन अगर आपका परफेक्ट है तो रिटायरमेंट परफेक्ट हो जाएगा. No issues are there. So hope for the best. We'll continue further with the more practice with these type of sum and more difficult sums like this in next lectures. Thank you very much.